Assalamu alaikum class. Hope you all are doing well and having a great time. Today is the last lecture of our online lecture series. That's the lecture number 9, and successfully we had completed all the topics and which were mentioned on your course outline. So plus, we had discussed some more interesting topic which were not included in the course outline, but I suppose that the topic which I had included for your understanding that was very helpful, and it could make your understanding toward the course and toward the quantitative analysis technique regarding the test and parametric and non-parent in a very well manner. So that's the final topic. As we had discussed in the last topic regarding the linear programming, which was not so much about the testing and techniques, but same as the differentiation and integration, it's also like just to discuss or to have your understanding toward this, because maybe in future you will be discussing about it in some more extent and complexity. So in these online series, I don't want to go in a complex situation for you, because that's just a topic which is going to be initiated for your understanding, and I hope that you had been studied about it a little bit, maybe in a business mathematics or not, so we discuss it over here. So differentiation and integration. Before going on to discuss about the differentiation and integration, I would like to discuss first thing, which is the base or which subject which is about to be occurred or to be covered the whole differentiation and integration component of the either it is about the maths, either it's about the economics, either it's for the physics, all the thing, the subject which is covered under it, it is about the calculus. So, what is a calculus? Calculus is a branch of mathematics that involves the study of a rate of change. When we talk about the differentiation and integration, so this component and this concept is about the rate of a change in a things. It's kind of an instantaneous rate of a change in a things. So calculus is a form of a mathematics study or a branch of a mathematics in which the rate of a change had been studied by the two different component, which is differentiation and integration. It provides a framework for a modeling system in which there is a change and a way to deduce the prediction of a such model. Now, इसमें सबसे important चीज़ ये होती है कि when we talk about the calculus, इसमें आप predict कर रहे होते हैं for the future well-being, that if the changing are doing in that way, so what will be in future, or what will be the prediction value for the future operational, future modeling structures. Okay, now it's about the history of a calculus, that before the calculus was invented, all maths was static. All math was static means all math was in a constant and static way. It could only help calculate objects that were perfectly still. Means वो object के हवाले से calculus से पहले mathematics में उन objects को देखा जाता था जिनकी वैल्यू या जिनकी आप ये थी कि ऑब्जेक्टिविटी जो है स्टिल होती थी, जो कांस्टेंट होती थी, जिनमें कोई मूवमेंट या कोई रेट ऑफ चेंज नहीं आता था. बट द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड चेंजिंग. लेकिन देखा ये गया है कि यूनिवर्स जो है वो कंस्टेंटली मूव हो रहा है, चेंज हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही होती हैं और उनमें थोड़े थोड़े स्टेप्स, स्टीप चेंजिंग जो है उनमें आ रही होती हैं. दैट्स वाई अगर हम स्टार्स से बात करेंगे और एक सबऑटोमेटिक पार्टिकल्स या सेल्स की बात करेंगे जो हमारी बॉडी में है, ऑल आर इज कंस्टेंटली चेंजिंग, तो नो वन इज इन अ रेस्ट. दैट्स वाई इट हैज बीन इन्वेंटेड फॉर अ कैलकुलस टू सी द रेट ऑफ द चेंज इन अ ऑब्जेक्ट्स. Calculus is used in a multitude of the field that you would not originally think would make the use of its concept. Among them are, अब जिन fields में calculus को use किया जाता है, जिनमें calculus की study की जाती है, that was related to the physics, engineering, economics, statistics and medicine. इन fields में calculus की बाकायदा तौर पे study की जाती है, जहाँ पे चीज़ों में changes को देखा जाता है. और economics में हम कैसे चीज़ों को देखते हैं, statistics में कैसे देखते हैं, we will discuss in further. Calculus is also used in the such disparate areas as a space travel. ना सिर्फ हमारे अर्थ रिलेटेड चीज़ों में, बल्कि आउट ऑफ द अर्थ में भी, आउट ऑफ द स्पेस में भी जो भी कंपोनेंट हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनमें भी कैलकुलस की स्टडी से रिलेट होकर उनमें हेल्प हो सकती है. लाइक स्पेस ट्रैवल, एज वेल डिटरमाइन हाउ मेडिकेशन इंटरेक्ट विद द बॉडी एंड इवन हाउ टू बिल्ड स्पेशल स्ट्रक्चर. तो उन तमाम चीज़ों में कैलकुलस जो है स्टडी की जाती है, उसको इवेल्युएट किया जाता है. नाउ वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंशिएशन, बिकॉज कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं. कैलकुलस की दो टाइप है, वन इज डिफरेंशिएशन एंड सेकंड वन इज द इंटीग्रेशन.
डिफ्रेंशिएशन फर्दर मोर कम टू द कंपोनेंट ऑफ द डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव्स में जो है अगेन इन इकोनॉमिक्स और इन फाइनेंस में जो है फर्दर एक अलग सा एक पूरा अलग कंपोनेंट है जो डेरिवेटिव को डिफाइन कर रहा होता है, जिसमें फ्यूचर नीड्स को डिस्क्राइब करते हैं. Differentiation. In a mathematics process of finding the derivative or the rate of a change of a function. Now, हम कहते हैं वी हैव अ काइंड ऑफ अ डेरिवेटिव मार्केट्स. डेरिवेटिव का मतलब ये है कि जहाँ पर आपके फ्यूचर में किसी भी तरह के अगर हम फाइनेंस की बात करेंगे तो फाइनेंशियल टूल्स जो हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो बाय और सेल हो रहे होते हैं. फ्यूचर मार्केट डेरिवेटिव अबाउट द फ्यूचर मार्केट, जहाँ पर रेट ऑफ अ चेंज चीज़ों में देखा जाता है. तो दैट्स रिलेटेड टू द prediction and the kind of a modeling structure it's predict for the future. और इसमें कैसे it have to be a kind of a rate of a change in a thing. Derivation is all about finding rate of a change of a one quantity compared to the other. Now, derivatives may we used to see the rate of a change, but the rate of a change of a what? From a one quantity to the other. Rate of a change of a time इन कंपोनेंट ऑफ अ डिस्टेंस. अगर एक गाड़ी मूव कर रही है सो उस कार के मूव करने के फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड जितने डिफरेंट इंटरवल्स आते हैं, उन तमाम डिफरेंट इंटरवल्स में जितने माइल्स वो जो है वो कार कवर कर रही होती है, उन तमाम सिचुएशंस को हम डेरिवेशंस डिफरेंशिएशन में से उस कंपोनेंट को लेते हैं विच इज़ अबाउट द एवरेज रेट ऑफ अ चेंज. We need differentiation when the rate of a change is not constant. This point is very important. हमारे पास एक कंपोनेंट आगे हम उसमें ग्राफिकल व्यू में भी देखते हैं. दैट वर्ड इज अ वेरी कांस्टेंट. जब चीज़ें कांस्टेंट नहीं हो, जब रेट ऑफ अ चेंज कांस्टेंट ना हो बल्कि उसमें किसी तरह के वेरिएशंस हो, उसमें किसी तरह की चेंजिंग्स आ रहे हो, तब हम डिफ्रेंशिएशन की तरफ जाते हैं. ये बिल्कुल वैसा ही है लाइक अ पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. पैरामीट्रिक टेस्ट में हम वो तमाम टेस्ट को फॉलो करते हैं. उन अजम्पशन ये होती है जहाँ पर डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, लेकिन जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो तब हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाते हैं. अब यहाँ भी हम डिफ्रेंशिएशन के कंपोनेंट की तरफ नहीं जाते अगर तमाम की तमाम चीज़ें कांस्टेंट हो, लेकिन अगर चीज़ें या किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिविटी में कांस्टेंट या वेरिएशन हो, कांस्टेंट ना हो, तब हम वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन के कंपोनेंट में चीज़ों को देखेंगे. इन कॉन्ट्रास्ट टू द एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ द थ्योरी बिहाइंड इट, the particular technique of a differentiation can be carried out by the purely algebraic manipulation. तो यहाँ पर again हम because it's a kind of we are studying differentiation in the component of statistics, तो यहाँ पर हम इसके algebraically form में इनकी multiplication या जो manipulation है, implementation है या operations हैं, उनको देखा जाता है. और differentiation के काफ़ी सारे rules हैं like addition, subtraction, multiplication, production, quantitation, expansion, exponents. तो ये तमाम के तमाम रूल जो है वो डिफरेंशिएशन में आते हैं, जो बिजनेस मैथमेटिक्स की क्लास में भी हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. डिफरेंशिएशन इज अबाउट द रेट ऑफ चेंज फॉर अ ज्योमेट्रिक कर्व्स एंड फिगर्स. दिस मीन डिटरमाइनिंग द स्लोप or tangent along a given direction. Being able to calculate rate of change also allow one to determine where maximum and minimum values occur. So differentiation ना सिर्फ rate of change को describe कर रहा होता है बल्कि rate of a change in the component of a geometric curves. Geometric curves कैसे? We will be discussing on later. They along with the direction, upward direction है या downward direction है. It's about determining the slope. Slope को पता है, the slope could be in an upward direction or a downward direction, or the tangent, graphical view, tangent triangle view of the component. और इसमें एक और चीज़ जो हम देख रहे होते हैं, वी यूज टू सी अबाउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू विच गोइंग टू बी अकर इन फ्यूचर. व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू फॉर द डिफरेंट फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ द प्रॉफिट, प्रिडिक्शन ऑफ द कॉस्ट, प्रिडिक्शन ऑफ द रेवेन्यू. तो उन तमाम चीज़ों को हम डिफ्रेंशिएशन में देखते हैं. नाउ दिस इज द कांस्टेंट रेट. अगर आपको याद है, दैट इज द काइंड ऑफ अ लीनियर ग्राफ जहाँ पर आपकी स्लोप कांस्टेंट है फॉर एवरी स्टेप. आइदर ये 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, एवरी स्टेप द स्लोप इज in a constant way. यहाँ एग्जाम्पल एक कोट की गई है, constant rate of a change. Let's take an example of a car traveling at a constant 60 km/h. एक गाड़ी है जो 60 km/h की स्पीड से जो है वो चल रही है.
The distance time graph would look like a mention in the graph. तो यहाँ पर एक ग्राफ जो मेंशन कर रहे हैं इसमें आवर्स और इसमें डिस्टेंस को मेंशन किया जा रहा है. It's about the time and it's about the distance. We notice that the distance from the starting point increases at a constant rate of a 60 किलोमीटर पर आवर. अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हर एक घंटे बाद जो गाड़ी की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो है वो बढ़ती जा रही है. So after a 5 hours, we have traveled 300 kilometer. At the end of the 5th hour, we have to travel about the 300 kilometer. So that's a constant. That's a constant graph which is showing the same slope, which is on the increasing way, on the upward right direction, upward direction में है. We notice that the slope gradient is always 300 upon 5. चूँकि आपकी distance जो है distance over time को अगर हम देखेंगे तो distance is 300 and time in the 5 hour which is 60 किलोमीटर. ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जो हमारा slope है that is increasing by the every 60 kilometer distance increasing in a 1 hour. So that is 60 for the whole graph. There is a constant rate of a change of the distance compared to the time. The slope is a positive all the way. The graph goes up. You go left to right along the graph. So that is a graph of upward direction and that is a constant kind of a graph. So this is what which we had studied in the linear operation, in the linear programming. So that's not the differentiation, but I'm just going to and make your understanding toward what's the differentiation, what's the non-constant rate, and what's the constant instantaneous constant rate. This graph is showing the differentiation. Now that is a rate of a change that is not constant. अब इस मिसाल में दिया गया है कि एक बॉल है, उस बॉल को थ्रो किया गया, जब वो उसे थ्रो करेंगे तो वो पॉजिटिव स्लोप में जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट पर बॉल रुक जाएगी और वापस ज़मीन की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी. तो इस तरह से इस ग्राफ में आप देखेंगे कि हमने स्पीड से जो है एक स्पीड से उस बॉल को थ्रो किया, वो बॉल एक हाइट पे गई और उस हाइट से दोबारा नीचे आई. हाइट पे जाने के प्रोसेस को हम देख रहे हैं कि दैट्स इज रिलेटेड टू द पॉजिटिव स्लोप, और वापस आने के प्रोसेस को कहा जा रहा है नेगेटिव स्लोप. हर एक स्टेप पर, हर एक हाइट के स्टेप पर जो है इस ग्राफ में कांस्टेंट जो है स्लोप सेम नहीं है, बल्कि कहीं पे स्लोप पॉजिटिव है, कहीं पे स्लोप ज़ीरो है और कहीं पे स्लोप नेगेटिव है. तो इस स्लोप की इस सिचुएशन में चेंज आने को नॉन इंस्टेंट या नॉट लीनियर ग्राफिकल व्यू कहा जाता है. Now let's throw a ball straight up in the air. Because the gravity acts on the ball, it slow down, then it reverse direction and it start to fall. All the time during this motion, the velocity is changing. So तमाम वक्त में इस बॉल को फेंकने और इसके वापस ज़मीन में आने तक के सिचुएशन में जो velocity है वो चेंज हो रही है because of the gravity. Now let's look at the graph of a height in a meter again in a time in a second. This time the slope of the graph is changing throughout the motion. Overall इस सिचुएशन में ग्राफ का जो स्लोप है वो पूरी सिचुएशन में कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है. Sometimes it's on a positive and sometimes it is on a negative. At the beginning it has a steep positive slope indicating the large velocity we give it when we throw it, and then as it's slow the slope gets less and less until it becomes zero. स्टार्ट में वो स्लोप जो है वो पॉजिटिव होता जा रहा है और एक कंपोनेंट में आकर वो स्लोप नेगेटिव हो रहा है until the slope gets the zero. When the ball is at the height point at the velocity is zero. और यहाँ पर इसकी जो velocity है that will be equivalent to zero. When the ball starts to fall and the slope become negative corresponding to the negative velocity and the slope becomes steeper as the velocity increases in a negative sense. So इस situation में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे constant slope की value है, but in a rate of a change यहाँ पे कॉन्स्टेंटली एक चेंज आ रहा है स्लोप में जो वेरी कर रहा है, जो नहीं पता कि कौन से कंपोनेंट में वो स्लोप कितना है. दैट इज़ व्हाट द डिफरेंशिएशन प्रोसेस. और डिफरेंशिएशन में हम हर स्टेप में दैट्स कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. हर एक स्टेप में छोटे छोटे आप स्लोप के चेंजेस को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उनको एनालाइज कर रहे होते हैं और एवरेज देखते हैं कि एक्चुअल में जो स्लोप जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो कितना वेरी कर रहा है.
Now, differentiation is also used in the analysis of a finance and economics. तो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट में भी डिफरेंशिएशन को देखा जाता है, उसे यूज़ किया जाता है चेंजिंग्स को देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ग्राफिकल व्यू में इसे देखते हैं. लाइक हमारी बहुत सी ऐसी डेरिवेटिव मार्केट्स हैं जहाँ पे इस कंपोनेंट को बहुत क्लोजली एनालाइज किया जाता है. इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टॉक, इफ़ यू टॉक अबाउट द गोल्ड, इफ़ यू टॉक अबाउट द ऑयल, और भी दूसरे हमारे मार्केट हैं जहाँ पर ना सिर्फ जो है कमोडिटी सेल होती हैं बल्कि वहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी सेल किए जाते हैं. तो डिफरेंशिएशन में जो रेट ऑफ चेंज है उनको एनालाइज किया जाता है. वन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अ डिफरेंशिएशन इज इन द एरिया ऑफ ऑप्टिमाइजेशन. दैट इज अगेन जब हम कहते हैं कैलकुलस, कैलकुलस के अंडर आती है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन के अंदर आती है ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन विच मीन्स फाइंडिंग द कंडीशन फॉर अ मैक्सिमम और अ मिनिमम टू अकर. ऑप्टिमाइजेशन चूंकि वर्ड खुद ही डिफाइन कर रहा है दैट इज रिलेटेड टू द ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच. तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आप चीज़ों के मैक्सिमाइजेशन और चीज़ों के मिनिमाइजेशन को देख रहे होते हैं. This is important in a business in the process of a cost reduction, profit increase. आप अपने बिजनेस ऑपरेशन को प्रॉपर्ली एनालाइज करने के लिए व्हाट विल बी द प्रॉफिट इन द फ्यूचर, सो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट को या रेवेन्यू के अकॉर्डिंग जो है या प्रॉफिट के अकॉर्डिंग जो है आप चीज़ों को डिफाइन कर रहे होते हैं. दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन. इसके थ्रू करते हैं हम इन चीज़ों को. दिस इज इम्पॉर्टेंट इन अ बिजनेस, कॉस्ट रिडक्शन, प्रॉफिट इंक्रीज, एंड इंजीनियरिंग में मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड मिनिमम कॉस्ट. इन कंपोनेंट को, इन चीज़ों को देखा जाता है. The process of finding maximum or a minimum value is called optimization. We are trying to do things like maximize the profit in a company, minimize the cost, or find the least amount of the material to make a particular object. So when we talk about the profit function, and we talk about the revenue function, when we talk about the cost function, लीनियर प्रोग्रामिंग तो हम करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग को हम देख रहे होते हैं, लेकिन जब और वो सिचुएशन वो है जब आपके इन्वायरमेंट अजम्पशंस कांस्टेंट हो, जहाँ पर आप इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट चला आए या इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो कांस्टेंट हो. लेकिन जब चीज़ें कांस्टेंट नहीं होंगी तो उस सिचुएशन में ऑप्टिमाइजेशन या डिफरेंशिएशन के प्रोसेस की तरफ हम जाते हैं. These are very important in the world of industry because उसमें ये होता है कि आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं with the all scenario. आप तमाम चीज़ों को, तमाम हर्डल्स, तमाम प्रॉब्लम, ये तमाम अनसर्टिनिटीज़ जो भी हैं, उन अनसर्टिनिटीज़ को मेजर करके या उन अनसर्टिनिटीज़ को मद्देनज़र में रखते हुए आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ अपनी फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, अपने फ्यूचर गोल्स को डिफाइन कर रहे होते हैं. स्पेशली हमारी कंट्री, हमारी इकोनॉमी जैसे बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रोसेस के साथ चलना. दैट्स वाई डेरिवेटिव मार्केट जो हमारे पास आजकल काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रही हैं, और वी हैव टू स्टडीड. हम देखते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह के कोर्सेज जो है वो इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं. दिस इज एग्जाम्पल, यहाँ पर एक एग्जाम्पल में जो है इनिशिएट कर रही हूँ. इट्स अबाउट द डिफरेंशिएशन के हवाले से एग्जाम्पल में यहाँ पे कोट कर रही हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर क्लियर हो सके और बेटर हो सके. सो the example is related to the daily profit of an oil refinery is given by. This is the function. The function, ये function जो है खुद ही डिस्क्राइब किए जाते हैं. ये पहले से कंपनी जो है वो डिस्क्राइब कर देती हैं on the relevancy of the data which they get. These functions have to be described. Where X is the number of a barrel of oil refined, how many barrels will give maximum profit and what is the maximum profit. Now profit maximization के component को identify करने के लिए एक function दिया गया है. अब इस function को we used to go with the differentiation in the profit for a P and differentiation in the X. X is the number of the barrel of oil required. इस पोजीशन या इस सिचुएशन में जब हम डिफरेंशिएशन के कंपोनेंट को देखने के लिए जा रहे हैं, एंड इफ वी सी दैट थिंग्स आर हैव टू बी इन दैट वे कि
नाउ मैथमेटिकल व्यू में अगर हम इसे देखेंगे कि हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन और फॉर्मुलाइजेशन को करते हैं, सो इस कंपोनेंट में जहाँ हमें एक्स की कोई भी वैल्यू हमें आइडेंटिफाई नहीं है, सो एज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन वी जस्ट गो विद द minus value of 0.04x, we used to commit on the other side of the equation, और इस तरह से हमने x की वैल्यू को मालूम किया, which is come and when 8 divided by the 0.04, so value of x is equal to 200. So value of a x is equal to 200. That is about the नंबर ऑफ अ बैरल के मैक्सिमम नंबर ऑफ अ बैरल आपके पास 200 होने चाहिए। बस इस सिचुएशन में जहाँ पर हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम बैरल 200 होने चाहिए, तो दैट पॉइंट प्रॉफिट कितना होगा? सो वी जस्ट प्योरली गो विद द नंबर ऑफ अ बैरल मल्टीप्लाई विद 0.04, और इस तरह से हमने प्रॉफिट रेट्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया। अगर if the company refined 200 barrel, that's the mathematical calculation, that if the company refined 200 barrels per day, the maximum profit of the company is 800 800 sorry $800. So this is how the maximization, and again the reverse minimization को भी आप इसी तरह से देख सकते हैं। इन दिस ग्राफ यहाँ पे शो कर रहे हैं कि कंपनी जो है जैसे जैसे, अब यहाँ पर आप देखें कि 100-200 पर कंपनी जो है उसको सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर कंपनी के नंबर ऑफ बैरल जो हैं वो बढ़ते जाएंगे तो कंपनी को प्रॉफिट में भी कमी आती जाएगी। मिनिमम प्रॉफिट भी कंपनी जो है वो यूटिलाइज कर सकती है। मैक्सिमम अगर वो 400 पे है और नंबर ऑफ बैरल अगर इंक्रीज करेंगे तो उनका प्रॉफिट रेट भी बाय टाइम जो है वो चेंज होता जाएगा। सो ये सीलिंग है 800, जहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू 200 है और आपके प्रॉफिट रेट जो है वो 800 है। दैट्स द सीलिंग कि कंपनी आइडेंटिफाई कर लेती है कि मैक्सिमम कंपनी को प्रॉफिट कहाँ तक होगा, और उस मैक्सिमम प्रॉफिट को रीच करने के लिए कंपनी के पास क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। वैन द कंपनी जो है अगर कंपनी जो है क्वांटिटी यूज टू इंक्रीज द क्वांटिटी, सो द profit rate of the company will going to be decreases. So this is the situation when the things had been identified, and due to that instantaneous rate of a change, company had to be maybe go to loss, अगर वो समझे कि वो जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो उनके प्रॉफिट रेट्स उतने ज़्यादा होंगे। So this is about the differentiation and the aspect of a differentiation. I hope you have a understanding over it. अगर जो है, और इसके पहले भी जो है बहुत सारी चीज़ें आप इससे पहले भी कोर्सेज में पढ़कर आ चुके हैं, मे बी नॉट, सो मेक इट श्योर ओवर हियर. Now the next topic is about the integration. There is not much differences between the differentiation and the integration. Differentiation, it's about the rate of a change, the instantaneous rate of a change. But the integration is about this area. ये वाला जो component है, means this one. ये तो differentiation बताता है कि आपका how the rate of a change is going to be occur. लेकिन इंटीग्रेशन ये बता रहा होता है कि जो ये ग्राफिकल व्यू बन रहा है, इस ग्राफिकल व्यू के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, मैक्सिमम पॉइंट टू मिनिमम पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन लिमिट टू अनदर लिमिट, वो क्या है? दैट इज स्टडीड इन द इंटीग्रेशन. Like a differentiation, integration has its roots in an ancient problem, particularly finding the area or a volume. यहाँ पर एरिया को देखा जाता है और वॉल्यूम को देखा जाता है. एरिया इन हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल एक्सिस पे चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं. Integral objects and finding the center of a masses. Essentially, integration generalizes the process of summing up many small factors to determine some whole. So when we talk about the differentiation, so it's about the graphical view and the changes occurred which were on the constant instantaneous rate of a change. But the integration is the process which about the area and a volume of the specific graphical view in a specific presentation from a one point to the other point.
Also, like a differentiation, integration has a geometric interpretation. The definite integral of the function f between the initial and the final values t is equal to a, and the t is equal to b is the area of the region enclosed by the graph of f. The horizontal axis and the vertical axis. So these are two kind of axes, horizontal and a vertical axis, which relate for the area or for the graph. डिफ्रेंसिएशन में हम स्पेसिफिकली रेट ऑफ चेंज को देख रहे होते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में हम क्वांटिटी को, जो क्वांटिटी है इन द फॉर्म ऑफ एरिया और इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, हम उनको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, हम उनको एनालाइज कर रहे होते हैं. एंड दिस इज द सिंबल जहाँ पर हम इंटीग्रेशन के कंपोनेंट को देखते हैं. और बहुत ही एक पूरा कोर्स होता है डेरिवेटिव्स के हवाले से अगर आप कहें तो, एक पूरा कोर्स कंपोनेंट होता है जहाँ पर इस कंपोनेंट को डिस्क्राइब करते हैं, जहाँ जिसमें आपके एक्सपोनेंट वैल्यूज़ की आइडेंटिफिकेशन होती है, एक्सपोनेंट वैल्यूज़ को डिफाइन किया जाता है और उनको समराइज करते हैं. बट दिस इज जस्ट टू द understanding for you what the differentiation and what the integration and what are the difference between these two components. Now, differentiation and integration. Differentiation and integration both satisfy the property of linearity. दोनों में linearity की property को satisfy कर रहे होते हैं. One, the property which is about the non-linearity, लेकिन the kind of a linearity के property को satisfy कर रहे होते हैं. डिफरेंस इसमें आप ऐसा भी होता है, जैसे हमने रिग्रेशन लाइन में डिस्कस की थी, कि कुछ हमारे वेरिएबल्स जो होते हैं वो स्कैटर डायग्राम के अबव आते हैं, कुछ बिलो आते हैं, कुछ वेरी क्लोज आते हैं. तो अगर हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के कंपोनेंट में ग्राफिकल व्यू को देखते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनने के बाद कुछ वैल्यूज अबव दी रिग्रेशन अबव दी लाइन और कुछ वैल्यू बिलो दी लाइन जो है वो अकर्ड हो रही होती है. Differentiation and integration both operation involve limits for their determination. So this is kind the limitation. ये जो component है, this is about the limitation of the processes. Again यहाँ पे भी that's about the limit. ये चीज़ों में limits कर देते हैं, maximum limit and minimum limit को identify करने के लिए. Both differentiation and integration are discussed are inverse process for each other. The derivative of any function is unique, but on the other hand, the integral of every function is not unique. Two integral of the same function may differ by a constant. Upon differentiating a polynomial function, the degree of the result is less than 1. The degree of the polynomial function, where in case of integration, it's about the degree of the function, first degree equation, second degree equation, and high degree equation. So related to them, the polynomial function had been defined like ax plus b, ax square plus bx plus c. So these about the polynomial functions in a differentiation and the integration property. While dealing with the derivatives, we can consider derivative at a point whereas in the integral of a function or an interval is considered. Now derivatives में ये है कि आप हर एक like change in a rate, हर एक छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद जो रेट चेंज हो रहा होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं. दैट इज ऑन द इंटीग्रल एस्पेक्ट, जिसमें आप इंटरवल्स को देखते हैं और आप उसे डिफाइन कर रहे होते हैं. Geometrically, the derivative of a function describes the rate of change of a quantity with respect to another quantity, while indefinite integral represent the family of a curves position parallel to each other. Now, differentiation में आप rate of change of quantity की बात करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में या इंटीग्रल में हम कर्व की फैमिलीज को डिस्कस कर रहे होते हैं, उनको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि वो कौन से कंपोनेंट में शामिल है. Parallel tangent at the intersection point of every curve of the family with the line of orthogonal to the axis representing the variable integration. जो variables होते हैं दो variables, उनकी आपस की integration को हम इसमें define कर रहे होते हैं. Differentiation and integration of a function are the main analytical tools in the business and economics, as these tools are related. The derivative is measure of how a function changes its input change, how the function change its input change in a non-constant values. The derivative of a function, if integrated, returns the function itself. Function के
व्हेन वी टॉक अबाउट द डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन की हम बात कर रहे होते हैं, तो फंक्शंस जिस तरह से चेंज होते रहते हैं, इनपुट वैल्यूज भी उसके चेंज होते हैं. इट्स अबाउट द टू डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल. लेकिन जब हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे होते हैं, तो दैट इज रिटर्न फंक्शन इटसेल्फ. एक ही कंपोनेंट में रेट ऑफ अ चेंज की हम बात करते हैं. एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ही हम उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चेंज होने को हम क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं. The integral of a function, if differentiated, return the function itself. The process of finding a derivative is called differentiation. The reverse process is called integration. So, differentiation and integration, these both are reverse of each other. डिफ्रेंसिएशन में हम दोनों वेरिएबल्स के चेंजेस को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में हम सिर्फ एक कंपोनेंट को या एक वेरिएबल के चेंज को ही देख रहे होते हैं ऑन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. For a real value function of a single real variable, the derivative of a point equals the slope of a tangent line of the graph of the function at the point. Integral is summation operation. It is summing areas or a volume of the form function in dx, where d is the small interval. So, ग्राफिकल व्यू में भी दिस इज अबाउट द इंटीग्रेशन, जिसमें आप एक्स एक्सिस पे ही चेंजेस को देख रहे होते हैं, बट इन द डिफरेंशिएशन इसमें आप एक्स और वाई एक्सिस में चेंजेस को देख रहे होते हैं. नाउ इट्स हाउ बिजनेसेस में किस तरह से हम डिफरेंशिएशन के कंपोनेंट को देखते हैं, या बिजनेसेस में ये इम्प्लीमेंट कहाँ होता है, ये एप्लीकेबल कहाँ है, कैसे यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट में या बिजनेस के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को. हम जहाँ डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करेंगे, तो वो कौन से यूजेस है जहाँ पर हम इन चीज़ों को देख रहे होते हैं. सो दैट्स द लास्ट पॉइंट, और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप इस पर फर्दर सर्च भी कर सकते हैं कि वो अगर डेरिवेटिव्स की बात करेंगे तो वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पर आप डेरिवेटिव्स को या फाइनेंशियल मार्केट्स में या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इनको आइडेंटिफाई करते हैं. द टेक्निक्स ऑफ अ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूसिंग द नोशन ऑफ अ डेरिवेटिव्स of a function, the notion of a maxima and minima of a function. Taylor expression of a differential function, integration of a function, and present application. The concept of integration is widely used in the business and economics. In this section, we consider the following application of an integral in a finance and economics. क्योंकि हम यहाँ पे business और economics की बात अगर हम करेंगे, being a business student, being a commerce student, तो कुछ ऐसी जो है इसके applications को बता दें जो normally use होती हैं, like marginal and total revenue, cost and profit. इन कंपोनेंट की फंक्शनिंग के लिए जो है मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रॉफिट, इनकी फंक्शनिंग के लिए डेरिवेटिव्स या डेरिवेटिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं. कैपिटल एक्यूमुलेशन ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ अ टाइम को देखने के लिए ये एप्लीकेशन यूज होता है. कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लसेस या लॉरेंस एंड जीनी इफेक्ट. जीनी इफेक्ट इज अबाउट, ये एक इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है. इफ यू रीड, इफ यू गो टू स्टडी ऑन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल फाइनेंस, तो वहाँ पर आप जीनी इफेक्ट को पढ़ेंगे, जिसमें फ्यूचर मार्केट, दैट्स दीज बोथ कंपोनेंट आर रिलेटेड टू द फ्यूचर मार्केट. फ्यूचर मार्केट का मतलब ये है जहाँ पे स्टॉक की ट्रेडिंग हो रही होती है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शंस आते हैं, स्टॉक आते हैं, डेरिवेटिव्स आते हैं. तो उन जो है एरियाज में, उन फ्यूचर मार्केट में, मीन्स अभी आप फ्यूचर मार्केट में खड़े नहीं हैं, लेकिन फिल वक्त जो है आज के दिन आप 2030 की डील कर रहे होते हैं. आज के दिन, आज के टाइम, आज के सिनेरियो में खड़े होकर आप 2030 के स्टॉक्स की डीलिंग कर रहे होते हैं. और आपको पता है कि बिजनेस में जब भी हम डिस्कस करते हैं, जब भी हम बिजनेस के कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं, तो इट्स अबाउट द फ्यूचर अजम्पशंस की हम बात करते हैं. तो जीनी इफेक्ट जो है इन्हीं जो है चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, दैट ऑन अ प्रेजेंट टाइम, ऑन अ प्रेजेंट सिनेरियो, यू विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट, फ्यूचर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को आप उनकी डीलिंग कर रहे होते हैं. दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन अ डेरिवेटिव्स मार्केट, और यही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के एस्पेक्ट्स को डिफाइन कर रहा होता है. सो दैट इज द लास्ट टॉपिक विच वी हैड डिस्कस. नाउ कम टू द क्वेश्चन. जो आप लोगों के सवाल आ रहे होते हैं असाइनमेंट के हवाले से
कि असाइनमेंट में कौन सी चीज़ें करनी है, किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, उन सवालात को अभी डिस्कस कर लेते हैं। और आई होप दैट विल बी अ लास्ट टाइम टू डिस्कसिंग अबाउट द असाइनमेंट, बिकॉज हम अभी आपके लेक्चर्स भी ख़त्म हो गए, तो अब आपके पास टाइम है असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि आप दैट्स असाइनमेंट में मैं कैसे आपको ये कहूँ कि ये वैल्यू ठीक है या गलत है। मैं आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, आपको जो है ग्राफ्स दिए गए हैं, सॉरी आपको टेबल्स दिए गए हैं, आपकी हर तरह से हेल्प करने की पूरी कोशिश की जा रही है, बट आपके आंसर्स के हवाले से मैं आपको कोई गाइड नहीं कर सकती कि आंसर ठीक है या गलत है। अगर आपके ग्राफ में वो वैल्यूज़ हैं, अगर आपके टेबल में जो टेबल्स आपको दिए गए हैं अगर उनमें वो वैल्यूज़ शामिल हैं तो दैट्स गुड। नहीं है, आपने जिस तरह से मुझे बताया था तो मैंने आपको एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो आपसे शेयर किया। सो प्लीज़ असाइनमेंट में प्रॉब्लम पूछें, लेकिन सॉल्यूशंस के हवाले से मुझे काइंडली जो है सवालात ना पूछें कि ये ठीक है या गलत है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर्स के हवाले से है, जिसमें आपने 7 स्टेप्स को फॉलो करना है और एक अलग डायग्राम है जिसमें क्रिटिकल रीजन और जो है क्रिटिकल रीजन या कॉन्फिडेंशियल रीजन को डिस्क्राइब करेंगे। सो इस अगर डायग्राम आपसे ग्राफ में बन रहा है बड़ी आसानी से, आप इसको एक्सेल पे बहुत आसानी से अगर आप वर्ड पे से बना सकते हैं तो दैट्स अ वेरी गुड। वेरी गुड का मतलब ये है कि मीन्स आप इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो अच्छा परफॉर्म करेगा द पर्सन विल गेट अ गुड मार्क्स। लेकिन अगर आपसे वो नहीं हो रहा, अगर आपसे वो ग्राफ में एक्सेल पे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो आप बाय हैंड भी उसे ड्रॉ कर सकते हैं। दैट विल आल्सो बी एक्सेप्टेड एंड विल बी मार्क्ड। ठीक है, सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने जब कहा कि मैनुअल करें या वर्ड करें, तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास हैं, लेकिन मार्क्स मिलेंगे एक्सपर्टीज पेज के जो अपनी एक्सपर्टीज को यूटिलाइज कर रहे हैं और वर्ड पे बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं। अब ये ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट है, तो डेफिनेटली किसी तरह से भी आपको जो है हम बहुत सारी चीज़ों में आपको फ्री हैंड मिल रहा है, लेकिन कहीं पर आपके एफर्ट्स का आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगेन यहाँ पे यही बात कहूँगी, वर्ड पे करेंगे बहुत अच्छा है, पिक्चर्स भेजेंगे अच्छा है, लेकिन वर्ड पे करेंगे और प्रॉपर चीज़ तरह से एक रिपोर्ट की फॉर्म में अगर आप मुझे देंगे जिससे आप बाकी सब्जेक्ट्स में डेफिनेटली दे रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड, that will be appreciated and marks in the form of appreciation you will get the good marks. So इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखें। 20 नंबर का सवाल है, इस 20 नंबर के सवाल में आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को, आपकी एनालिटिकल स्किल्स को, तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स अबाउट द सिंपल इंटीग्रेशन लाइन। आप लोगों ने सवाल किए थे कि सर अली ने हमें कोई और फार्मूला कराया, आपने ये फार्मूला कराया। हालांकि क्लास में ही मैंने डिस्कस कर लिया था कि यू हैव टू फॉलो ऑल दीज फार्मूलाज। इवन आपके पास आर स्क्वायर के 2 ऐसे फार्मूले हैं कि अगर एक पे वैल्यूज नहीं आ रही, अब दूसरे पे वैल्यू करेक्ट आ जाती हैं। सो वो तमाम चीज़ें मैंने क्लास में डिस्कस कर ली थी, उसके बावजूद भी ग्रुप में अगेन इन चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। और उसके जवाब में मैंने आपको फॉर्मूले आप लोगों को पिक्चर्स लेकर भेजती हैं कि दीज आर द फार्मूला, अब आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप सबके पास बुक है, आप सबके पास नोट है, आप सबके पास अपने नोट्स हैं जिसमें हमने एक एक करके फार्मूले लिखवाए, बट उसके बावजूद भी सवालात आ रहे थे, वही सवालात के डायग्राम को कैसे बनाएं, तो अब उसका जवाब आई गेस आप सबको मिल चुका होगा। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। नाउ यू ऑल आर अ ग्रोन अप किड्स, यू आर नॉट अ किड्स, यू आर अ ग्रोन अप एडल्ट। ठीक है, तो आप एडल्ट्स हैं, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं आप, 6th सेमेस्टर में आप जाने वाले हैं, तो अब तो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यू हैव टू गुड इन अ रिपोर्ट स्किल्स आपकी बड़ी बेहतर होनी चाहिए। सो दीज आर जस्ट अ कोर्सेज विच कैन बी इन इनपुट। नेक्स्ट वाज द एनालिसिस ऑफ अ वेरिएंस। इसके हवाले से अगेन जो है एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कुछ इश्यूज थे, तो वो आप लोगों से शेयर कर ली गई है। आई होप कि अब आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर हो गई है। और अगेन यहाँ पे एक सवाल में किसी ने कहा था कि x की वैल्यू 35 हमें जो है वो 35 की वैल्यू दी गई थी, तो वो 35 की वैल्यू x आपको यहाँ से अब आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। ये आपका एक होगा कॉमन सेंस का सवाल। ठीक है,
आपकी यहाँ पे जो है कॉमन सेंस टेस्ट की जाएगी कि व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में से देन आप हर एक आपकी एक्स की वैल्यू है, आपने हर एक एक्स की वैल्यू के लिए आपने हर एक एरर कैप को या वाई कैप की वैल्यूज को आपने आइडेंटिफाई करना है हर एक के लिए। अगर आप वो क्वेश्चन देखेंगे जिसको आपने रेफर किया था, किसी ने क्लास में मुझसे ये पूछा था ग्रुप में, तो आप देखें कि उस सवाल जिस सवाल का आप रेफर दे रहे हैं उसकी टेबल आप खोल के देख लें। उस टेबल में आपको क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हर जो है एक्स वाई के नंबर अलग है और हर एक कॉलम में हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग जो रॉ में हमने कैलकुलेशंस की हैं वो तमाम में एक्स और वाई की वैल्यूज को डिफाइन किया गया है। सो आई होप अब तक फार्मूला भी शेयर हो गया तो आपके लिए डिफरेंट जो है इसमें मुश्किल ना होगी। ओके, अनोवा के हवाले से जो है जी, अनोवा के हवाले से क्वेश्चन क्लास लेक्चर्स वीडियो सारी चीज़ें हैं। समझ में नहीं आ रही, आप वीडियोस देखें, बार बार देखें, एक से ज़्यादा दफ़ा देखें, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वीडियोस अब आपकी फैसिलिटी के लिए आपके पूरा क्लास का सेशन डिफरेंट हो गया, फिफ्थ सेमेस्टर हो गया है। पहले जो है वीडियोस, अब तो हर सेमेस्टर के वीडियोस अलग हैं, तो आप अपनी क्लास सेशन में जाएं, उस क्लास सेशन में तो अब आप वीडियोस को ढूंढ सकते हैं कि आपके कौन सा सब्जेक्ट के वीडियोस कितने हैं, और उन वीडियोस में आप हर लेक्चर को ढूंढें। लेक्चर नंबर्स लिखे हुए होते हैं टिकर में, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, जिससे आपको हेल्प हो सकती है। प्लस आपकी क्लास के लिए तो एक और चीज़ मैंने देखी कि गूगल क्लासरूम में, अगर जो लोग गूगल क्लासरूम में नहीं है उनके लिए बता दूं कि गूगल क्लासरूम में आपके रिलेटेड लेक्चर्स के, मैंने कोशिश की है कुछ दो लेक्चर्स टॉपिक्स में कि उनके रिलेटेड वीडियोस भी मैंने अपलोड कर लिए हैं, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। नेक्स्ट, दिस वाज अबाउट द मीन वार्डनिंग यूथ टेस्ट, दैट इज अ नॉन पैमेटिक टेस्ट, और यहाँ पे आपको रैंकिंग करनी है। अब मुझसे किसी ने पूछा था कि 31 नंबर 2 दफ़ा आ रहा है, हैरत हुई मुझे, बट कोई बात नहीं। आई नो के वीडियो डेफिनेटली आपने देखी नहीं होंगी, या जो वीडियो एक और वीडियो बनाकर यूट्यूब वीडियोस के अलावा भी एक वीडियो बनाकर शेयर की थी जिसमें हमने रैंकिंग सिस्टम का एक पूरा प्रोसेस बताया था कि किस तरह से नंबर्स को रैंक दिए जाते हैं। तो मैं रेफर करूंगी इस सवाल के लिए कि जिनको रैंकिंग का समझ में नहीं आ रहा तो उस वीडियो को देखें और नंबर्स की रैंकिंग करें, तो दैट विल बी हेल्पफुल। और इस सवाल में एक और क्वेश्चन है कि U1 और U2 की वैल्यूज के हवाले से कि 0 आ रही है एक वैल्यू, और एक वैल्यू शायद आई डोंट रिमेम्बर, आंसर किसी ने बताया था, लेट मी चेक। ओके, एक वैल्यू जो है कह रहे हैं कि 49 है और एक वैल्यू 0 है, ठीक है। सो इसमें क्या करेंगे, अब आप देखें, अगर आपको जो टेबल भी शायद मैंने के लिए दिया था, ये आपकी क्लास में ही प्रैक्टिस क्वेश्चन था, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दोबारा से मैंने दिया है, सो आप उसमें देख लें। अगर उस टेबल में नहीं है तो वी विल चेक, और मैं चेक कर देती हूँ, बट दैट्स अगेन दैट्स अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। यू मीन वार्डनिंग यूनिट टेस्ट का आप वीडियो देखें, अजम्पशंस देखें कि हम कौन सी वैल्यू को कंसिडर करते हैं फॉर द आंसर पर्पसेस, वो वैल्यू देखें। लोअर वैल्यू को हम कंसिडर कर रहे होते हैं, वाई वी कंसिडर लोअर वैल्यू बिकॉज उसके इफेक्ट ज़्यादा आ रहे होते हैं। सो उस कंपोनेंट को या उस लेक्चर सीरीज को आप डेफिनेटली दोबारा से देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एट द एंड जो क्वेश्चन था ये है, 1 पेजर समरी रिक्वायर्ड 250 to 300 वर्ड, हर एक लेक्चर के लिए, हर एक टॉपिक के लिए, मीन्स ये 5 टॉपिक है तो आपने 5 पेजेस पे काम करना होगा। हर एक के लिए 250 to 300 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है कि आप इन लेक्चर सीरीज को सुनेंगे और उनमें आप जो है अपनी समरी बनाएंगे। ये सिर्फ
सबका एक ही आपने समरी फॉर्म में नहीं लिखना, बल्कि हर एक टॉपिक को एक पेज में आपने लिखना है। और पेज में जो वर्ड की रिक्वायरमेंट है वो 250 to 300 वर्ड तक की होनी चाहिए। इस पर भी आप मुझे वर्ड की फाइल में जो है इस आंसर को भेजेंगे और आपका प्लेज प्रॉपरली चेक किया जाएगा। और प्लेज में भी ये है कि डेफिनेटली हर कोई अगर अपनी वर्डिंग में लिखेगा तो दूसरों के साथ ये मैच नहीं करेगा। अगर किसी के साथ मैच किया तो इट्स वेरी इजी कि वहाँ पर जो है वो plagiarism शामिल हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द असाइनमेंट। सो आई होप अब आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है, चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। और अब आप असाइनमेंट करेंगे डेफिनेटली। नाउ यू ऑल आर वर्किंग ऑन इट। बहुत सारे स्टूडेंट के रिस्पॉन्सेज आते हैं जो नहीं कर रहे हैं अब तक, तो ये वीक अब आपके पास है, बट डेडलाइंस को प्लीज़ फॉलो करें। डेडलाइन से अगर पहले असाइनमेंट, इफ़ एनीवन कैन सबमिट देयर असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन, दैट इज़ वेरी गुड। आप बिल्कुल सबमिट करा सकते हैं, डोंट वेट फॉर द डेडलाइन। इफ़ यू हैड डन योर वर्क ऑल कंप्लीट योर असाइनमेंट, सो प्लीज सबमिट इट बिफोर द डेडलाइन। उससे पहले भी आप सबमिट करा सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट योर कोर्स फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड टेक्निक्स। दैट वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ योर क्लास। बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा के। देयर आर वेरी मेनी थिंग्स ऑन लर्निंग स्टेज। आपसे कुछ सीखा, आपने शायद मुझसे कुछ सीखा, लेकिन मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और मैंने इस कोर्स को पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। द लर्निंग थिंग इज द वन वे प्रोसेस। आपकी तरफ से भी और हमारे टीचर्स की तरफ से भी होती है, और ये लर्निंग दोनों तरह से है। सो इट वॉज अ वेरी गुड टाइम स्पेंड विथ यू ड्यूरिंग योर क्लास सेशन। 2 महीनों में जो वक्त गुजारा, और अगेन ऑन दिस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में भी बहुत अच्छा लगा। आई होप टू सी यू गाइस सून इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर। मे बी शायद आपको पढ़ाए, शायद आपको ना पढ़ाए, दैट्स गॉड नोज वेल, बट वेरी गुड टाइम स्पेंड विथ यू, ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ऑल द बेस्ट फॉर योर असाइनमेंट। अल्लाह हाफिज़।